Good morning, students. Today we are going to start the second chapter of geography, that is physical features of India. You might have thought that why ma'am is making video like this. Because beta this chapter I'm going to explain like this because I want to explain it practically. Understand? If I will give you only theoretical knowledge of this chapter, now you will not understand. That's why I am making this video like this. Please concentrate. I will explain this video by reading. Most of the part of this video I will give explain you after reading, because I don't want to miss any part, because this is very interesting chapter regarding the physical features of India, means about our India, how different physical divisions or landforms are formed in India. So interesting chapter, you must have knowledge of each and everything. That's why we will read the chapter and then I will explain it clearly. Understand beta? So let us start with the chapter's name, physical features of India. Physical features beta, land forms of India. Our India is made of different landform, means somewhere there is a desert, somewhere plains, somewhere plateau, somewhere rivers, somewhere we can say deserts, isn't it? So we are having different landforms in India. So all these different landforms is called as physical features of India, and basically we are going to discuss about the landforms or physical features of India in this chapter. Okay beta. So now let us start with the second paragraph, that why these different landforms occur in one country. Because of different types of rocks, because of different types of rock, different physical features are available. Somewhere it is soft rock, somewhere it is hard rock. ठीक है, hard rock that is used for making that Taj Mahal, and soft rock like that is used for making soap stones, isn't it? So different rocks are there, that's why different physical features are there. Other thing, different varieties of soils are there. Somewhere it is black soil, somewhere red soil, somewhere alluvial soil, somewhere less fertile soil. So different rocks, different soil, and different soil formations are there. That's why we are having different physical features in India. Understand? Now let us move to third paragraph. India is a large landmass formed during different geological period which has influenced her relief. जो इंडिया का जो लैंड मास है वो अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड्स में बना है, मीन्स कुछ जो हिस्सा है लैंड मास का वो मिलियंस ऑफ ईयर पहले बना है, कुछ जो है लाखों साल पहले बना है, कुछ जो है हजारों साल पहले बना है। मीन्स पूरा इंडिया जो है अपन ये देखते हैं, पूरा इंडिया वो एक साथ का नहीं बना हुआ है, ये एक साथ का नहीं बना हुआ था, ये मैं धीरे धीरे चैप्टर में अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो इंडिया पूरा एक साथ नहीं बना था, अलग अलग पीरियड के दौरान जो है इंडिया का जो अलग अलग पार्ट्स फॉर्म हुए, ठीक है। बिकॉज ऑफ, कैसे फॉर्म होते हैं? बिकॉज ऑफ वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। कैसे फॉर्म होते हैं? बिकॉज ऑफ वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। इन तीन एक्टिविटीज़ के कारण जो है अलग अलग पीरियड्स में, जियोलॉजिकल पीरियड्स में अलग अलग लैंड मासेस फॉर्म हुए। अंडरस्टैंड बेटा? वेदरिंग ऑलरेडी अपन आगे क्लासेस में पढ़ चुके हैं। वेदरिंग जब तेज हवाएं चलने की वजह से, विंड की वजह से या तेज बारिश की वजह से जो रॉक्स टूटती है, ठीक है, जो मतलब तेज अपन कह सकते हैं हीट की वजह से, क्लाइमेटिकल चेंज की वजह से, किसी भी एक्टिविटी की वजह से जब रॉक्स टूटती है, बिखरती है, तो इससे नए नए लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं। दूसरी एक्टिविटी होती है इरोजन, ठीक है, जब मिट्टी अपने साथ बहकर लाती है नदियाँ, तो उससे नए नए लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं। बहा के लाती है, और सॉरी उसको बोलते हैं डिपोजिशन, जब मिट्टी बहाकर लाती है नदियाँ। इरोजन जब मिट्टी बहकर चली जाती है एक जगह से दूसरी जगह से, तो इससे भी अलग अलग लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं। तो अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड्स में अलग अलग वेदर कंडीशंस की वजह से या रीजन्स की वजह से जो है अलग अलग लैंडफॉर्म्स, फिजिकल फीचर्स जो है इंडिया के फॉर्म हुए। अंडरस्टैंड? ये 3 पैराग्राफ क्लियर है आई थिंक। अब अपन देखेंगे साइंटिस्ट के हिसाब से, साइंटिस्ट का क्या मानना है कि कैसे ये फिजिकल फीचर्स और लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट कहते हैं कि थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ different फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट अकॉर्डिंग टू अवर साइंटिस्ट, ठीक है,
theory of plate tectonics is responsible for different फिजिकल फीचर्स और डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब लेट अस सी, जैसे ये अपना अर्थ है बेटा, अगर आपने एग देखा हो तो एग में 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, एक आउटर जो कवरेज होता है, वो अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है, और उसके अंदर एक और येलो पोर्शन होता है। ठीक है, जिस तरह से एग 3 पार्ट्स से बना होता है ना, उसी तरह से हमारा जो अर्थ भी है कुछ इसी तरीके से बना हुआ है। अगर आपने 8th क्लास में पढ़ा हो तो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं अच्छे से। अर्थ से रिलेटेड जो आउटर पोर्शन होता है ना अर्थ का, उसको अपन बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, जो इनर पोर्शन होता है, जो सेकेंड लेयर होती है, ये पतला जो आउटर पोर्शन है, सॉरी ये 4 लेयर्स हो गई। आउटर पोर्शन जो है दैट इज क्रस्ट, ये जो अंदर का लेयर है दैट इज मैग्मा, मैग्मा या मेंटल कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और जो अंदर का पोर्शन है इसको बोलते हैं कोर। अंडरस्टैंड? तो ये 3 पार्ट्स हैं अर्थ के। जो आउटर पोर्शन, जैसे एग का बाहर का जो पपड़ी होती है, बाहर का जो पोर्शन होता है ना, उसी तरह का अर्थ का जो बाहर का पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज क्रस्ट। ठीक है, बट एग में क्या होता है, ये पोर्शन पूरा एक साथ जुड़ा हुआ होता है, मतलब एक लेयर होती है, इसमें क्रैक्स नहीं होते हैं। ठीक है, बट जो अर्थ क्रस्ट है ना, वो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 7 अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है। 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दैट। ये जो अर्थ है ना, वो अर्थ का जो आउटर पोर्शन, क्रस्ट की बात कर रहे हैं, जो क्रस्ट है वो 7 डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइडेड है। आया बात समझ में कि अर्थ जो है 3 लेयर्स में है। आउटर जो लेयर, जो अर्थ, जो पृथ्वी जहाँ पे हम रह रहे हैं, लैंड फॉर्म, उसको अपन बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट के अंदर होता है मैग्मा, ये सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, और मैग्मा के अंदर के पार्ट को अपन बोलते हैं कोर। और जो आउटर पोर्शन है क्रस्ट, वो उसमें 7 क्रैक्स है, वो 7 प्लेट से बना हुआ होता है, और इन प्लेट्स के बारे में ही हम पढ़ने जा रहे हैं। अब क्या होता है, जब अंदर से हीट बहुत ज़्यादा पड़ती है तो जो फोर्सेस उठती है ना, उन फोर्सेस की वजह से ये मैग्मा में लिक्विड, मैं कह रही हूँ ये लिक्विड पोर्शन है, लिक्विड पोर्शन मूव करता है। लिक्विड पोर्शन मूव करने के बाद ये जो मैंने कहा इसमें दरारें हैं, 7 प्लेट्स हैं, मतलब 7 दरारें हैं बीच में से। तो दरारें होने की वजह से ये सॉलिड पोर्शन, मतलब इकट्ठा नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। दरारें होने की वजह से जब ये लिक्विड मूव करता है इंटरनल फोर्सेस की वजह से, तो ये प्लेट्स भी बेटा हिलने लगती हैं। ठीक है, इनमें भी कंटिन्यूस जो है मूवमेंट देखा जाता है। अब वो मूवमेंट इतना छोटा होता है ना कि अपने को महसूस नहीं होता है काफ़ी बार। ठीक है, और ये हजारों सालों के बाद या काफ़ी समय के बाद जब है कि बहुत ज़्यादा चेंज आता है, ज़मीन हिल के एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होती है, तो वो लाखों, हज़ारों, करोड़ों सालों में एक बार हमको महसूस होता है, पता चलता है कि देयर इज़ अ मूवमेंट इन द अर्थ। बट रेगुलर मूवमेंट होता है जो महसूस नहीं होता, वो इतना स्लाइट होता है। आ रही है बात समझ में? तो अर्थ इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। जो आउटर लेयर है क्रस्ट, वो 7 मेजर और माइनर प्लेट से बनी हुई होती है। इन प्लेट्स में क्रैक्स है, क्रस्ट में क्रैक होने की वजह से ये जो प्लेट हैं आपस में हिलती रहती है। मैग्मा में मूवमेंट होने के कारण, मैग्मा में मूवमेंट क्यों होता है, क्योंकि इंटरनल जब फोर्सेस हीट बढ़ जाती है तो मैग्मा में मूवमेंट होता है, और इसकी वजह से क्रस्ट भी जो है मूव होता है। ठीक है, अब इसकी वजह से डिफरेंट लैंडफॉर्म्स कैसे फॉर्म होते हैं वो पढ़ेंगे, पहले थोड़ा रीड भी करते हैं बेटा। Earth scientists have attempted to explain the formation of physical features with the help of some theories based on certain evidences. One such possible theory is the plate tectonics. According to this theory, the crust upper part of the earth has been formed out of 7 major and some minor plates. The movement of the plates result in the building of stresses within the plates and the continental rocks above, leading to folding, faulting and volcanic activity. अब ये folding, faulting और volcanic activity समझो। मैंने कहा कि इन क्रैक्स में मूवमेंट होता है बेटा, मैंने कहा ना इन मूवमेंट के कारण जो ये जो प्लेट्स हैं ना बेटा, ये जो प्लेट्स हैं ये अलग अलग तरीके से मूव करती हैं। कभी ये क्या करती है, प्लेट्स फोर्सेस जो है इन प्लेट्स को आपस में मिला देता है। ये मतलब ये पास पास आ जाती है। 2 प्लेट्स हैं, मूवमेंट की वजह से क्या होती है, आपस में टकरा जाती है। टकराने को अपन बोलते हैं फोल्डिंग।
ठीक है, जब प्लेट्स एक दूसरे से टकराती है, आपस में मिलती है, तो इसको बोलते हैं फोल्डिंग या फिर बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। जब डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स आपस में कन्वर्ज हो जाए, मिक्स हो जाए, उसको अपन बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, और इसी प्रोसेस को फोल्डिंग भी कहा जाता है। और इस कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की या कन्वर्जेंस की वजह से या फोल्डिंग की वजह से जो होता है माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। सपोज बेटा ये 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, तो जब ये एक दूसरे से टकराएंगी, प्लेट्स जो है एक दूसरे के पास आएंगी, तो पास आने की वजह से क्या है, ये ऊपर की तरफ स्लाइड हो जाती है, टकरा के ऊपर की तरफ मूव हो जाती है। ऊपर की तरफ मूव होने की वजह से जो है ये क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। आ रही है बात समझ में? जब प्लेट आपस में टकराती है, टकरा के ये ऊपर की तरफ मूव हो जाती है, एंड देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोल्डिंग। ठीक है, काफ़ी बार ये प्लेट्स जो है टकरा के दूर चली जाती है, काफ़ी बार टकरा के ऊपर की तरफ मूव होती है, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, काफ़ी बार टकरा के फिर दूर चली जाती है, एक दूसरे के गैप आ जाता है, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। जब एक दूसरे से दूर चली जाए प्लेट्स तो उसको कहते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, और दूर जाने की वजह से यहाँ पे फॉर्मेशन होता है रिफ्ट वैली का। ठीक है, माउंटेन्स जो ऊपर जाते हैं काफ़ी बार क्या होता है, ऐसे वैलीज बन जाती है। बाउंड्रीज जो है ये दोनों प्लेट्स आपस में टकराई, ठीक है, टकरा के क्या होता है, बीच में गैप बन जाता है, गैप बन जाता है, और ऐसे अपन कह सकते हैं वैली लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसे वैलीज नीचे डीप वैलीज फॉर्म हो जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्ट वैलीज। ठीक है, अगेन कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, जब प्लेट एक दूसरे के पास मूव होकर ऊपर की तरफ माउंटेन्स फॉर्म करें, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज या फोल्डिंग, और इसकी वजह से माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। जब प्लेट टकरा के दूर चली जाए एक दूसरे से, उसको बोलते हैं फॉल्टिंग, और इसकी वजह से फॉर्मेशन होता है रिफ्ट वैली का। अब थर्ड फॉर्म क्या होता है, काफ़ी बार प्लेट टकरा के ऊपर नीचे स्लाइड हो जाती है, एक प्लेट ऊपर एक प्लेट नीचे स्लाइड हो जाती है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। स्लाइड होने की वजह से बीच वाली जगह जो है खाली हो जाती है, इसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं काफ़ी बार स्लाइड होने की वजह से, और काफ़ी बार जो है वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ मीन्स वॉल्केनोज निकलते हैं, इसमें से मैग्मा निकलकर और वॉल्केनोज फॉर्म कर देता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया आपको। लेट अस मूव फर्दर। Broadly, these plates movements are classified into 3 types. While some plates come together each other and form convergent boundaries, some plates move away from each other and form divergent boundary. In the event of 2 plates coming together, they may either collide and crumble or may slide under the other. At times, they may also move horizontally. या तो ये क्रम्बल हो जाती है, कोलाइड काफ़ी बार एक दूसरे के नीचे भी चली जाती है ये प्लेट्स, और कभी कभी जो है ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की वजह से हॉरिजॉन्टली मूव भी कर जाती है। तो आई थिंक ये प्लेट टेक्टोनिक्स आपको समझ में आ गया है। अर्थ क्रस्ट वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो बेटा आप पूछते रहना मुझसे पर्सनली। ईच अदर एंड फॉर्म ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, मैं बता चुकी हूँ आपको। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स हैव चेंज द पोजीशन एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। ठीक है, ये मैंने बताया है कि इन मूवमेंट्स की वजह से काफ़ी बार जो ये कॉन्टिनेंट्स हैं इनकी जो जगह ही चेंज हो जाती है। जो कॉन्टिनेंट नॉर्थ में होता है वो साउथ में चला जाता है, साउथ वाला वेस्ट में भी जा सकता है। तो ये जो कॉन्टिनेंट्स है ना वो मूव करते हैं, पर ये जो मूवमेंट्स है मिलियंस ऑफ ईयर में देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आज ये यहाँ पे था ऑस्ट्रेलिया, अभी वहाँ चला गया, अभी फिर वहाँ चला गया। ऐसे रोज चेंजेस यहाँ हर साल में या 2-4 सालों में ऐसे चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं। ये मिलियंस ऑफ ईयर में जो है ये मूव तो करती रहती है प्लेट्स, पर हल्का हल्का मूव करती है, तो इतना हमको महसूस नहीं होता है। आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर जो एक्चुअल मूवमेंट इन प्लेट्स का देखने को हमको मिलता है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। Such movement have also influenced the evaluation of the present landform feature of India। और इस तरीके के मूवमेंट के कारण, इन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण ही हमारा इंडिया में भी मूवमेंट हुआ था मिलियंस ऑफ ईयर पहले, और जिसकी वजह से हमारा इंडिया फॉर्म हुआ। अब कैसे फॉर्म हुआ? द ओल्डेस्ट लैंड मास, जो हमारा ओल्डेस्ट लैंड मास था, दैट इज पेनिनसुलर प्लेट पार्ट, वॉज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताने जा रही हूँ, आप देखना। बेसिकली क्या होता है, पहले वाले टाइम में क्या था बेटा कि ये जैसे अभी अपन देख रहे हैं,
अलग अलग प्लेट्स, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं ना। पहले टाइम में मिलियंस ऑफ ईयर ऐसे नहीं था, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट नहीं जो लैंड फॉर्म्स नहीं थे। पहले वाले टाइम में क्या था बेसिकली बेटा, पहले वाले टाइम में सपोज ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। अर्थ में जो ये जो लैंड सारी अपन जो प्लेट्स देख रहे थे उस पेज पर, तो ये पूरा एक लैंड फॉर्म था, ठीक है। दिस वॉज द लैंड फॉर्म, ठीक है। और ये जो पार्ट था पूरा अर्थ का वो था ओशियन वाला एरिया, ठीक है, ओशियन एरिया। तो इस लैंड फॉर्म को बोला जाता है पैनगिया, पैनेगिया। और इस ओशियनिक वाले एरिया को बोला जाता है पेनथलसला, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज पैनगिया, दिस इज कॉल्ड एज पेनिस्थला, ठीक है। तो लैंड फॉर्म को अपन बोलते हैं पैनगिया, ओशनिक फॉर्म को बोलते हैं पेनिस्थला। तो पहले टाइम में मिलियंस ऑफ ईयर क्या था, सारी ये प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई थी, एक सिंगुलर लैंड फॉर्म था। अंडरस्टैंड बेटा। बाद में जो है मूवमेंट की वजह से, या अपन कह सकते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से जो मूवमेंट आए ना, तो ये जो लैंड फॉर्म से आपस में टूटकर अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। तो इंडिया भी क्या था, पहले इस लैंड फॉर्म का हिस्सा था। और पहले टाइम में जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आपस में एक ही प्लेट से जुड़े हुए थे, एक ही प्लेट के दो सिरे थे, एक तरफ था इंडिया, दूसरी तरफ था ऑस्ट्रेलिया। तो इसको, इस प्लेट को अपन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहते हैं, जो कि एक सिंगल लैंड मास का हिस्सा था। बाद में मूवमेंट की वजह से जो है, अभी जो मैंने बताया लैंड फॉर्म, इस लैंड फॉर्म के भी टू पार्ट्स होते हैं बेटा, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, ठीक है। नॉर्थ को बोलते हैं अपन, नॉर्दर्न जो पार्ट है उसको अपन बोलते हैं अंगारा लैंड, ठीक है। और जो सदर्न पार्ट है उसको अपन बोलते हैं गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, वाना लैंड, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग, ये जो था ये लैंड फॉर्म इकट्ठे थे, अलग अलग प्लेट्स नहीं थी। ये था ओशियनिक, जो पूरा वर्ल्ड जो अर्थ कह सकते हैं दो हिस्सों में डिवाइडेड था, एक तरफ थी ज़मीन, एक तरफ थी पानी। ज़मीन वाले एरिया को अपन बोलते हैं पैनगिया, वाटर वाले एरिया को अपन बोलते हैं पेनिस्थला। अब जो लैंड वाला एरिया है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, नॉर्थ और साउथ। जो नॉर्दर्न पार्ट था उसको अपन बोलते हैं अंगारा लैंड, और जो सदर्न पार्ट था उसको अपन बोलते हैं गोंडवाना लैंड। अंडरस्टैंड बेटा। तो जो इंडिया था वो सदर्न पार्ट का हिस्सा था गोंडवाना लैंड का। इंडिया कहाँ का हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का। और उस समय इंडिया किस तरीके से फॉर्म था, सिर्फ इस तरीके से। जो ऊपर आज की डेट में अपन जो हिमालयाज और नॉर्दर्न प्लेन्स दे रहे हैं ना, देखते हैं ना बेटा, इसको अपन बोलते हैं यंग माउंटेन्स, यंग माउंटेन्स या यंग प्लेन्स, ठीक है। ये जो पुराने टाइम में इंडिया कैसा था, सिर्फ पेनिनसुलर प्लेट्यू था इंडिया का, ये जो चीज़ें थी इंडिया में नहीं थी। तो ये कैसे फॉर्म हुई, ये प्लेट टेक्टोनिक्स की मूवमेंट्स की वजह से जो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था इंडिया, वो मूव कर गया साउथ टू नॉर्थ की तरफ। जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था वो ऊपर जाकर जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो टकरा गई यूरेशियन प्लेट से। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो जो है प्लेट्स मूवमेंट की वजह से जाके टकराई यूरेशियन प्लेट से। यूरेशियन प्लेट से टकराने की वजह से देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ, ये जो देख रहे हो ना, हिमालयन माउंटेन्स। अब हिमालयन माउंटेन कैसे फॉर्म हुए बेटा, तो यहाँ पे बीच में एक नदी थी, टिथ रिवर्स। आपको पता होगा कौन सी रिवर, टिथ्स रिवर। टिथ्स रिवर थी। तो इंडिया कहाँ का पार्ट था, गोंडवाना लैंड का। इंडिया कहाँ का पार्ट था, पैनगिया का लैंड पोर्शन के साउथ का गोंडवाना लैंड का पार्ट था। जब ये ऊपर की तरफ मूव कर गया, मीन्स अंगारा लैंड की तरफ या नॉर्थ की तरफ मूव करके यूरेशियन प्लेट से टकराया ना, तो बीच में एक नदी थी, टिथ्स रिवर, ठीक है। टिथ्स रिवर जो है, नदी के अंदर का जो सेडिमेंट था ना, ये प्लेट अपने साथ ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट करके ले गई। और ये सेडिमेंट इतने फोर्स के साथ ड्रिफ्ट हुआ, नदी के अंदर का जो स्लिट, जो सेडिमेंट है उसकी बात कर रही हूँ मैं, वो जब ऊपर की ड्रिफ्ट हुआ और ऊपर यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो देयर वॉज अ फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन माउंटेन, देयर वॉज अ फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन माउंटेन। आई थिंक आई एम क्लियर टू यू। और अगर आप पढ़ोगे तो आप ये भी पढ़ोगे कि हिमालयंस को यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं, तो न्यूली फॉर्म्ड माउंटेन्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज कल या 100 साल पहले या 200 साल पहले हिमालयस बने तो ये भी मिलियंस ऑफ ईयर पहले है, बट
पेनिनसुलर प्लेट्यूज पहले से ही थे और ये काफ़ी टाइम बाद जो है ये फॉर्म हुए हिमालयाज माउंटेन, इसलिए इनको बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स। कैसे फॉर्म हुए? तो पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो है एक अलग प्लेट का हिस्सा था। प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ये जो है ऊपर जाके टकराया यूरेशियन प्लेट से। यूरेशियन प्लेट से टकराने से पहले जो तित नदी थी बीच में, उसके सेडिमेंट्स को अपने साथ ऊपर बहा के ले गया। यहाँ टकराने की वजह से सेडिमेंट्स इकट्ठे होकर और उन्होंने हिमालयन माउंटेन्स का रूप ले लिया। तो फिर ऐसे में फॉर्मेशन हुआ, हिमालयन माउंटेन्स बन गए। पेनिनसुलर प्लेट्यूज तो पहले ही से थे, बीच में एक गड्ढा सा फॉर्म हो गया, ठीक है, खड्डा फॉर्म हो जाता ना। फिर समय के साथ जब हिमालयन माउंटेन से नदियां बहने लगी, यहाँ से भी नदियां बह के जाने लगी, तो ये जो गड्ढा है ये नदियां अपने साथ मिट्टी को बहा के जाने लगी और धीरे धीरे समय के साथ जो है ये गड्ढा बढ़ता गया। इस एक्टिविटी को अपन क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। और ऐसे में फॉर्मेशन हुआ नॉर्दर्न प्लेन्स का। आ रही बात समझ में? जो पेनिनसुलर प्लेट्यू थे वो पहले से ही थे, ठीक है। फिर बने हिमालयाज और समय के साथ साथ जो ये खड्डा हुआ, डिपोजिशन जो उसके कारण जो है, नदियों के बहाव के कारण जो है इसमें जो है सॉइल फिल होती गई और देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स ऐसे बने। तो इस तरीके से हमारा पूरा इंडिया बनकर तैयार हुआ। तो आई थिंक आई एम वेरी क्लियर टू यू। अभी भी बेटा कोई दिक्कत हो, जितनी मेरे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, सोर्सेज अवेलेबल है, उनके हेल्प से मैं जितना अच्छे से आपको क्लियर कर सकती थी मैंने पूरी कोशिश की है। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बार रीड कर लेते कि कुछ छूट तो नहीं गया। तो द ओल्डेस्ट लैंड मास वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। द गोंडवाना लैंड इंक्लूड इंडिया, ठीक है। ओल्डेस्ट लैंड मास मैंने बताया ना, ये जो नीचे वाला लैंड था इसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। अब गोंडवाना लैंड का हिस्सा सिर्फ इंडिया नहीं था, ऑस्ट्रेलिया भी था, साउथ अफ्रीका भी था, साउथ अमेरिका एज वन सिंगल लैंड मास। ये पूरा एक सिंगल लैंड मास जुड़े हुए थे आपस में। ये जो आज अलग अलग देख रहे हैं ना ये अपन, ये आपस में एक साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। द कन्वेंशनल करंट स्प्लिट, जो अंदर से कन्वेंशनल करंट्स आते हैं उनकी वजह से ये स्प्लिट हो गया द क्रस्ट इनटू नंबर ऑफ पीसेस, thus leading to the drifting of Indo-Australian plates after being separated from the Gondwana land towards north. The northward drift result in the coalition of the plate with much larger Eurasian plate. Due to coalition, the sedimentary rocks which were accumulated in the geosyncline known as the tits, ये मैंने बताया, जो सेडिमेंट्री रॉक्स अंदर थी उसके वर फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन्स सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड हिमालयाज, और यहाँ से फॉर्मेशन हुआ हिमालयाज का। The Himalayan uplift out of the Tutsi and subsidence of the northern flank of the peninsular plateau resulted in the formation of large basin. In due course of time, this depression gradually filled with deposition of sediments by the river flowing from the mountains in the north and peninsular plateau in the south. A flat land of extensive alluvial deposit led to the formation of, और इस तरीके से northern plains बने rivers के deposition के कारण। ये मैं आपको बता सकती हूँ, हिमालयाज इस तरीके से बना और northern plains भी बन गए। The land of India displays great physical variation. Geologically, the peninsular plateau consists of one of the ancient, जो peninsular plateau है मैंने कहा वो पहले से ही था इसलिए उसको बोलते हैं ancient landmass on the earth surface. It was supposed to be one of the most stable and land block. The Himalayas and northern plains are the most recent. Himalayas और northern plains को recent landform कहा जाता है। From the viewpoint of geology, Himalayan mountains form an unstable zone. The whole mountain system of Himalaya represent a very beautiful, beautiful topography. बहुत ही सुंदर पिक्चर दिखता है हिमालयस का। हाई पीक्स हैं, डीप वैलीज है, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है। और नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या दिखता है? एल्यूवियल सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है। आज जो हमारा मैक्सिमम फार्मर्स एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, तो क्यों बेस्ड है? बिकॉज ऑफ दिस नॉर्दर्न रीजन, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स। द पेनिनसुलर प्लेट्यूज कंपोज, और पेनिनसुलर प्लेट्यूज की क्या स्पेशलिटीज़ है? यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स, रॉक्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो दीज आर द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस तरीके से जो हम कह सकते हैं इंडिया पूरा फॉर्म हुआ। पूरा इंडिया का फॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वो था, किस तरीके से प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से इंडिया फॉर्म हुआ। अब बेटा अपन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। तो बेसिकली इंडिया में कौन कौन से अलग अलग लैंडफॉर्म्स देखी जाती है? तो इंडिया में हिमालय माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, यहाँ पे डेजर्ट्स देखे जाते हैं, कोस्टल प्लेन्स देखे जाते हैं, साइड में नीचे जो है
ये देखो यहाँ पे आइलैंड्स हैं, ठीक है, ये कोस्टल प्लेन्स है, डेक्कन प्लेट्यूज है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, तो ये सारा हिस्सा है हिमालयाज का। अब इनको एक एक करके अपन डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना शुरू करेंगे। तो मेरे ख्याल से आई एम वेरी क्लियर टू यू। स्टिल बेटा इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक यू बेटा।